and page number is 57. Page number is 57. So brief information of the question I will be giving to you right now, and along with that we will be discussing. Okay. Good afternoon, friends. So today we will be discussing fixed income securities, as we have already started in the last class. But before coming to that topic, we will be discussing one of the problems of the previous topic, that is risk and return. One of the question has been asked frequently by some of the students, and they have sent me this problem. This problem is 3.8 RP risk book, and page number is 57. Page number is 57. So brief information of the question I will be giving to you right now, and along with that we will be discussing the solution of this problem. So I will just read out the problem that an investment is currently traded at 23 rupees and 50 paisa per unit. There is an uncertainty of the return, and following information is gathered in respect of this under different economic conditions: good, normal, and dull. Probability of good is 0.35, probability of normal is 0.30, and that of dull is 0.35. Return is 4.400, and year-end price is given. Okay, so you can look at the problem. Yes, this is the problem in summary form. I have already written it. The purchase price of this share is 23 rupees and 50 paisa. 23 rupees and 50 paisa. And if the situation is good, the price of the security will go up to 35 rupees. If everything goes as per plan, everything is good, economic conditions are good, there is a demand and so on, the price will rise from 23.50 to 35. यानी कि जो price है वो 23.5 रुपए से increase हो जाएगा, 35 रुपए तक पहुंच जाएगा. And company will also pay a dividend of 4.40. So return is of two types. One, the dividend, and second is of appreciation in the value. So dividend हमको मिलेगा 4.40. It is written there as return. Return in rupees means dividends. Under normal circumstances, the price will go up to 27, but company will not pay any dividend. And under dull situation means when things are not going good, things are bad, the price will, instead of increasing, will fall. Price will fall to 50. So this is one of the questions asked by the students yesterday, also in the yesterday's class. In the book, the answer is given. That is not correct. So we'll discuss the correct solution, how to go about this problem. So the first thing you will do is calculate the HPR for each of these three cases. HPR means the holding period return. Holding period return, how you calculate? Dividend plus price at the end minus price in the beginning, P0. D plus PI minus P0 divided by P0. This is the formula for calculating the HPR, holding period return. So under three circumstances, we will calculate the holding period return. So first will be 4.40 is the dividend we are receiving. 4.40 plus 35 minus 23.5 divided by 23.5. Okay, so this will be, I have already made the calculations here. Okay, I hope it is clear. The calculations have been made. Yes, this one. These are the calculations I have made. So this is 4.40 plus 30 in the brackets 35 year and price P1. P0 is 23.5. Okay? So divided by 23.5. So holding period return into 100. If you will multiply it with 100, because return is to be calculated in percentage form. So when you will calculate the return in percentage form, you have to multiply it with 100. So the answer will be 67.66. So first year's return is 67.66 HPR. This is without taking into account the probability, HPR. So when you calculate HPR, you don't consider probability. So HPR is 67.66. Similarly, you will calculate the HPR for year 2, under normal circumstances and under dull situation. Under normal circumstances, the HPR, because dividend is 0, it is given as 0. No dividend we are receiving, it is written as 0. So only return we are getting is the appreciation in the value. So what is the appreciation in the value? 27 minus 23.5. Appreciation in the value, I repeat, is 27, and year end price minus 23.5. Price in the beginning divided by 23.5. So HPR in this case is, second case 14.89. I have made the calculations. You can do it by using the formula. This formula you can use. Same calculations you have to repeat, and the answer you will be getting is 14.89. 14.89 percentage. That is 27 minus 23.5 divided by 23.5 into 100. So you will be getting a return of 14.89. In the third case, when the situation is bad and the economic situation is dull, the share price has fallen from 23.50 to 15. Share price जो है वो fall हो गया, increase नहीं हुआ, fall हो. So how you will calculate the return? 15 is the year end price. 15 minus 23.5 divided by 23.5. So return you will be getting is in negative. So negative returns are there. So negative returns of 36.17. There is a negative return of 36.17. Where my, just look at the point of my pen. 36.17 is the return. Okay, now multiply it with the probabilities, respective probabilities under each of these situations. So we will be getting the expected return. So that is 23.68. This is RI into PI. RI is the return, PI is the probability. Okay, in order to calculate the expected return. For first year it will be 23.68. 23.68. For second year it will be 4.467. 4.467. And for third year it will be minus. That is 36.17 in minus multiplied by 0.35. So the return you will be getting in minus. So this is minus 12.66. Minus 12.66. How you have calculated it? 36.17 into 0.35. Let me check it out. 36.17 into 0.35. It is 12.659.
So rounding it off, it will be 12.66 in minus. 12.66 in minus. So this is the return for 3 years. So if you will make a total of that, sigma or total, that will give you the expected return. So expected return is 15.487. Expected return is 15.487. Okay, this is the first part of the question. In the book, the answer is given as 26.55. But this is not correct. This is the way to go about. Calculate the HPR. Because the return you have to calculate in percentage. Only then you can solve problems like that. So next thing is we have to calculate the variance of this question, or we have to calculate the standard deviation. So now it is easy because these are the figures of return. Returns we have already calculated. Return is first condition it is 67.66. Second condition it is 14.89. Third condition it is minus 36.17. Okay, so minus return minus expected return square into PI. Okay, we will make another column. The column is R minus expected return, that is closed, square it. Okay, raised to the power 2 into PI probability. So first here it will be 67.66 minus 15.487. 66.66 minus 4.87 minus minus 15.487 square into 0.35. So this will be 52.137. 52.137 into 52.137 into 0.35. Okay, this is how you will make the calculations. Then similarly you will do for the others. Next is minus 11 into minus 11.02 into minus 11.02 into 0.30 into 0.30. Okay, so now you can make this question look very simple and do these calculations. You will find the answer. So it may not match with the answer given in the book because they have not calculated the HPR. Expected return we have to calculate only according to the HPR, holding period return, and then multiply it with the respective probabilities in order to calculate the average return. Okay, and all these calculations will be based upon that average return. So now I hope the queries of the students who have asked about this question are met. Okay, so this is regarding the previous topic because many students were asking about this question. I have taken up this question. Okay, now we'll come back to the topic which we have left in the last class. That is the fixed income securities, fixed income security. So as we have discussed in the last class, 3-4 types of questions are generally asked. One is the YTM, another is the valuation of the bond, third is the YTC, means maturity before the time, and 2 more things we have to discuss is the duration of the bond duration, and final thing which we have to discuss in this topic after calculating the bond duration, we have to calculate the modified duration. So we'll discuss some of the questions from the book Vanita Tripathi. Already the questions are with you people. Questions are there with you people. So you can refer to those questions. Okay. So I'm going to discuss question number 6. Question number 6. It is given. Page number is 202. So brief information about the question I will provide, and then we will discuss the question. Question number 6. So brief data is there about this question. Yes. Pages are flying all over. Yes. The first is question number 6. Fixed income securities. Question number 6 is here. Yes. The following information is given to you regarding the bond. Face value 100, coupon rate 10%, maturity 4 years, and redemption value is 120. Compute the value of the bond when the opportunity cost of the capital is 15%. So as we have discussed in the earlier class, the bond value depends upon the required rate of return. So in this case, the required rate of return of the investor is 15%. So opportunity cost and the required rate of return is same. Means if the investor wants to invest his funds, if he will not invest in this bond, he can invest it somewhere else. That is the opportunity cost. Opportunity cost is also the cost of capital, or it is also the required rate of return. So the required rate of return is 15%. So as we have discussed, to calculate the value of the bond, we divide the problem into 2 parts. One, the value of the bond based upon the interest, and second is value of the bond based upon the principal. So interest we are getting is 10 rupees for 4 years. 10% is the rate of interest. 10 rupees we will be getting for 4 years into PVAF, present value of annuity factor. PVAF 10%, PVAF 10%, and the number of years is 4. So you will look at the table PVAF, present value of annuity factor. कौन सी टेबल देखनी है हमको? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर टेबल, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी फैक्टर आएगा, लेट मी चेक इट आउट, व्हाट इज द फैक्टर. जस्ट you must know how to find the values from the table because tables will be provided to you in the examination. Yes. So we will look present value factor PVAF, present value of annuity factor. Rate of interest is 15%. 15% and number of years is 4. Number of years is 4. So the respective value is 2.855. The required value is 2.855. So multiply 10 with 2.855. That will be the current value of the dividends, current value of the interest. So multiplying it with 2.855, the value we will get is 28 rupees and 55 paisa. 28 rupees and 55 paisa. So this is the value of the 28 rupees and 55 paisa is the value of interest. This is the value of interest. Okay, this is the value of the interest. Second part is the redemption value of the debenture. So how much we are getting? We are getting 120. After how many years? 4 years. So it means we have to calculate the present value. So for this we will be looking at the present value table. Present value table. What is the rate of interest? Rate of interest is the required rate of return. That is 15%. So 15%, number of years 4. Number of years is 4. So present value factor for an amount. Present value of factor for a lump sum. 4 years, 15%. The corresponding value is 0.572. 0.572. So you will multiply 120 with 0.572. Multiply 120 with 0.572. So you will find the
वैल्यू ऑफ दिस डिबेंचर। एडिंग दीस टू टुगेदर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स हैं इसके, दो पार्ट्स हैं इसके, जिसमें आप इसको डिवाइड करोगे। एक तो इंटरेस्ट कंपोनेंट और दूसरा जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन वैल्यू या प्रिंसिपल। तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 97.16 है, 97.16 वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इफ दिस बॉन्ड इज सेलिंग एट 94, इफ द बॉन्ड इज सेलिंग एट 94 व्हाट इज द YTM ऑफ दिस बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड हमको 94 में मिल रहा है आज, तो इसकी YTM क्या होगी? यील्ड टू मैच्योरिटी। नाउ इफ द बॉन्ड इज सेलिंग एट 94, yes, let me hold it. Okay, yes, if the bond is selling at 94, we will apply the shortcut formula to make the things more easier. ठीक है, if the bond is selling at 94, the shortcut formula is what? Shortcut formula is value of the bond, YTM of the bond is equal to interest plus redeemable value minus market value divided by n. In the numerator what you will write? Interest plus redeemable value minus market value, redeemable value minus market value. Okay, redeemable value minus market value, and in the denominator what you will write? Redeemable value plus market value divided by 2. ठीक है, तो अब हम देखते हैं, just put the amounts in the respective. What is the interest? This bond is paying 10% interest, means 10 rupees. In the interest column you will write down 10. Redeemable at what price? 120. Market value कितने में मिल रहा है? 94. Market value is 94. And how many years after that it has to be redeemed? 4 years. So 4 लिखेंगे इसको, divided by 4. And in the denominator it will be 120 plus 94 divided by 2. 120 plus 94 divided by 2. Okay, so in the end we will be getting 16.5 in the numerator, and in the denominator we will be getting 107. 16.5 divided by 107 into 100. तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15.48, 15.48%. So this is the YTM of this bond. 15.48 is the YTM of the bond. ठीक है, so same problem you can also solve by using the trial and error method. Trial and error method. So in that case you will calculate the value at 15% and at 16%, because you already have a hint that you already have an idea that the YTM is between 15 and 16 by using the shortcut method. तो आप 15 और 16% पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके और उसके बाद इंटरपोलेशन यूज करेंगे. You will be using the interpolation and you can calculate the value of this bond. Value of the bond. ठीक है, so this was regarding yes, this is regarding maturity time when it is given in the question. Sometimes what happens, the bond is matured before its maturity. The company may have the right to call the bond before its maturity time. In that case it is known as callable bond. इसको हम क्या बोलते हैं? Callable bond बोलते हैं. अगर कंपनी अपनी टाइम से पहले किसी बॉन्ड की मेच्योरिटी कर दिया, जैसे मेच्योरिटी टाइम है 10 साल और कंपनी को राइट है कि 4 साल के बाद वो अपना जो डिबेंचर है वो कॉल बैक कर लो, तो उस केस में क्या होता है? मेच्योरिटी समय से पहले हो जाती है. इट इज बिफोर द टाइम. मेच्योरिटी इज डन बिफोर टाइम because company has the right and company may exercise this right. So when company exercises this right, it is known as callable bond. उस केस में हम YTM कैलकुलेट नहीं करते. YTM कब कैलकुलेट करते हैं? जब हम पूरे टाइम तक किसी बॉन्ड को रखते हैं. किसी डिबेंचर को अगर 10 साल की मेच्योरिटी, अगर हमने 10 साल तक रखा है, तो जो रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं YTM. That is known as YTM. But suppose after 4 years you want to the company wants to call it back. 4 साल के बाद कंपनी अपने डिबेंचर को कॉल बैक करना चाहती है. ठीक है, और उस केस में आपको बोला जाता है कि कैलकुलेट द रिटर्न. द रिटर्न which we will calculate in that case will be known as YTC. That is yield to call. Yield to call. The procedure of calculating YT is same as in the case of YTM. The only thing is that it is being called before the its maturity time. Only thing is that it is being called before its maturity time. Otherwise, two are same or similar. And calculating the YTM or YTC, you will be following the same procedure. ठीक है, तो अब हम ड्यूरेशन का क्वेश्चन करते हैं. ड्यूरेशन जो कि एग्जाम में आ सकता है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 27. ड्यूरेशन क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 27. Okay, if you don't have the question, I will be sending it in the group. If you already have, it's okay. Because I have sent all the questions in the group. If you are not a part of the group, you can just ask me. I can send you the question. So question is a ₹1,000. हाँ, पहले तो bond duration की concept समझ लेते हैं. What is bond duration? Okay, I hope it is readable. Bond duration and how it is to be calculated and what is the relevance of the bond duration. Bond duration क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और bond duration की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम डिस्कस करेंगे. तो बॉन्ड ड्यूरेशन होता है जैसे मेच्योरिटी टाइम जो होता है किसी भी बॉन्ड का. जैसे अगर आपने बॉन्ड परचेज किया 1000 का और कंपनी आपको 5 साल के लिए इसकी ड्यूरेशन है, तो 5 साल तक कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी. उसके बाद कंपनी आपकी वैल्यू वापस कर देगी, रिडेम्पशन वैल्यू. कंपनी विल रिडीम दिस डिबेंचर एंड इट विल पे यू बैक योर प्रिंसिपल. तो नॉर्मल कोर्स में हम क्या कहते हैं कि इस बॉन्ड की मेच्योरिटी टाइम 5 साल है, तो यही इसकी ड्यूरेशन है. बट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज पार्ट ऑफ द पेमेंट वी आर ऑलरेडी रिसीविंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. क्योंकि हम कुछ पेमेंट हर साल रिसीव कर रहे हैं इंटरेस्ट के रूप में, तो उसकी जो बॉन्ड की एक्चुअल ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी. तो दो कहते हैं, अगर तो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, इफ द कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट एवरी ईयर, duration will be less than its maturity time. ठीक है, आप याद रखेंगे. If company is paying interest every year, the duration of the bond will be less than its maturity time. Number 2, if company is not paying any interest, जैसे आपने डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं या जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड होते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, सिर्फ मेच्योरिटी के टाइम पे पैसा वापस मिलता है. जैसे आपने 800 का कोई बॉन्ड खरीदा और कंपनी आपको 5 साल के बाद सीधा 1000 रुपये देगी, तो इन बिटवीन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगी. कंपनी विल नॉट पे एनी इंटरेस्ट इन बिटवीन. इन दैट केस मेच्योरिटी वैल्यू और बॉन्ड ड्यूरेशन सेम है दोनों ही, क्योंकि पूरा पैसा आपको कब मिल रहा है 5 साल के बाद. तो कोई ड्यूरेशन और बॉन्ड में मेच्योरिटी में कोई फर्क नहीं होगा. देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन मेच्योरिटी एंड बॉन्ड ड्यूरेशन. लेकिन दीज टू विल बी डिफरेंट अंडर वन केस. अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है रेगुलर, तो इसका मतलब है जो आपकी ड्यूरेशन है वो कम है.
ठीक है, मेच्योरिटी टाइम से कम हो जाएगी आपकी बॉन्ड की ड्यूरेशन, तो दिस इज नोन एज बॉन्ड ड्यूरेशन। फिर हम देखेंगे कि बॉन्ड ड्यूरेशन क्या होता है और मॉडिफाइड बॉन्ड ड्यूरेशन क्या होता है, दोनों की कांसेप्ट समझेंगे और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको विल डिस्कस दैट। सो विल डिस्कस ए क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27 एंड द पेज इज 205 205। ठीक है, तो 1000 का बॉन्ड है। आई विल राइट डाउन द शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस क्वेश्चन। फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 1000। फेस वैल्यू कितनी है? 1000 और इसका कूपन रेट 8% है, यानी कि कंपनी किस रेट पे इंटरेस्ट देगी? 8% पे। और मेच्योरिटी टाइम क्या है? 5 इयर्स। मेच्योरिटी टाइम इसका दिया हुआ है 5 इयर्स एंड मार्केट प्राइस इसका अवेलेबल है मार्केट में 885 एंड इट्स यील्ड टू मेच्योरिटी इज 14%। वाईटीएम दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, वाईटीएम ऑलरेडी दिया हुआ है 14%। कैलकुलेट द ड्यूरेशन, तो हमको ड्यूरेशन इस बॉन्ड की कैलकुलेट करनी है। ओके, दिस इज द ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू कैन रीड। ओके, फेस वैल्यू 1000, इंटरेस्ट रेट 8%, मेच्योरिटी टाइम कितनी है? 5 इयर्स, मार्केट प्राइस 885, इट्स यील्ड टू मेच्योरिटी इज 14%। कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। ओके, एंड आल्सो कैलकुलेट द मॉडिफाइड ड्यूरेशन। पहले हम ड्यूरेशन करेंगे, फिर मैं आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन की कांसेप्ट बताऊंगा। पहले आप देखिए ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। तो अगर आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 80। तो आपको ईयर 1 2 3 4 5 फर्स्ट ईयर आपको जो कैश फ्लोज होंगे वो होंगे 80 80 80 80 एंड 1080। ये कैश फ्लो मिलने आपको। कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट किया? पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा 1000 पे 8% कितना होता है? 80। सेकंड ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 80। थर्ड ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 80। फोर्थ ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 80। फिफ्थ ईयर में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और प्रिंसिपल भी मिलेगा। प्रिंसिपल कितना मिलेगा? 1000। क्योंकि इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि व्हाट इज द रिडेम्पशन वैल्यू। इफ नो रिडेम्पशन वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन, अज्यूम पार वैल्यू एज द रिडेम्पशन वैल्यू। अगर रिडेम्पशन वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी जाती तो हम पार वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू को सेम मानते हैं। तो इस केस में रिडेम्पशन वैल्यू 1000 हो जाएगी। ठीक है, मार्केट वैल्यू से रिडेम्पशन वैल्यू का कोई लेना देना नहीं होता। ओनली द फेस वैल्यू और पार वैल्यू इज टू बी रिडीम्ड इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। तो अब हम क्या करेंगे? इस बॉन्ड की इस जो हमारे कैश फ्लो है इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन नंबर ऑफ इयर्स एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दिस इन्वेस्टर इज 14% बिकॉज द वाईटीएम ऑफ दिस बॉन्ड इज 14%। ये हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू विल कैलकुलेट एट द रेट ऑफ 14% फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स। एन क्या है? नंबर ऑफ इयर्स। तो इसको देखेंगे कि इसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में से देखना है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है आपकी? 14%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपकी दी हुई है बुक में 14%। तो मैं 14% वाली टेबल निकाल लेता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14%। लेट मी चेक इट आउट। द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14%। यस, द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14%। उसकी सारी 5 साल की फिगर्स मैं लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट ईयर में ये है 0.877। सेकंड ईयर में इट इज 0.769, 0.675, 0.592 एंड लास्ट फिगर इज 0.519। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैंने कहां से ली है? प्रेजेंट वैल्यू टेबल से। Here I have obtained these values from the present value table. Okay, present value of a future amount, rate of interest 14%. तो पहली जो फिगर है वो है 0.877, यानी कि अगर आप ₹1 आपको 1 साल के बाद मिला, उसकी आज वैल्यू कितनी है? उसकी आज वैल्यू है 0.87 पैसे के करीब, 88 पैसे के करीब है उसमें। मेरे ख्याल से वैल्यू ऑफ अराउंड 0.877। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू 0.877, 80 इंटू 0.877, तो ये आ जाएगा 70.16। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई? 70.16। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू मैंने निकाली 70.16। सिमिलरली आई विल डू इट फॉर ऑल द वैल्यूज। सेकंड ईयर द वैल्यू विल बी 80 इंटू 0.769, 80 इंटू 0.769। तो ये वैल्यू आ रही है 61.52। थर्ड में हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू 0.675, 80 इंटू 0.675, वैल्यू इज 54। नेक्स्ट इज 80 इंटू 0.592, 80 इंटू 0.592, तो ये आ रहा है 47.36 एंड लास्ट इज 1080 इंटू 0.519, तो ये आ जाएगा 560 रुपये 52 पैसे, 560.52। These are the values which we have calculated. Present values of all the dividends to be received, जो हमको डिविडेंड मिलना उसकी, ठीक है, जो डिविडेंड हमको मिलना उसका, और जो प्रिंसिपल वापस मिलना है रिडेम्पशन वैल्यू दैट इज 1000 एट द एंड ऑफ द ईयर 4, जो 4 साल के बाद हमें डिविडेंड मिलेगा उसके बाद। ठीक है, इसकी वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे? अब इसको सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे जस्ट कैलकुलेट इट्स टोटल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। टोटल वैल्यू इसकी निकल जाएगी 70.16 प्लस इसको ऐड कर लेंगे 61.52 प्लस 54.00 प्लस 47.36 प्लस 560.52। तो ये टोटल बॉन्ड की वैल्यू आ रही है 793.56।
ये बॉन्ड की वैल्यू है। तो अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% है तो इस बॉन्ड की वैल्यू है 793.56 793.56। सिंपली हमने सबको ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू बॉन्ड की वैल्यू। तो दिस इज बॉन्ड वैल्यू, ठीक है। इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। ओके, नेक्स्ट वी विल मल्टीप्लाई विद द रिस्पेक्टिव ईयर इन व्हिच द कैश फ्लो इज बीइंग रिसीव्ड। तो ईयर मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं इधर, ईयर है 1 2 3 4 5। इसको हम मल्टीप्लाई, ये किस्म के वेट है, ये ईयर नहीं है, ये वेट है, दीज आर द वेट एंड दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। तो एक और कॉलम बना लेंगे हम, वेट इनटू प्रेजेंट वैल्यू, वेट इनटू प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका लॉजिक क्या है, जो लास्ट ईयर में हमें कैश फ्लो मिल रहा है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, और जो पहले वाले ईयर में मिल रहे हैं उसकी वैल्यू कम है, उसकी वेट कम है, ठीक है। कैश फ्लोज रिसीव्ड इन द अर्लियर पीरियड्स दे हैव अ लोअर वेट एंड द कैश फ्लोज व्हिच आर रिसीव्ड इन द लेटर ईयर्स दे हैव अ हायर वेट। तो क्योंकि इस बॉन्ड की ड्यूरेशन 5 साल है तो 1 2 3 4 5 हमने लगा दिया, ठीक है। यही इसके वेट हो गए, दीज आर टू बी कंसीडर्ड एज देयर वेट्स। ओके, so now how to calculate the value? So 1 into 70.16, so this is 70.16, 2 into 61.52, 3 into 54, 4 into 47.36, 5 into 560.52, ये हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, दिस इज हाउ वेट इनटू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैंने आपको पहले बता दिया, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। दिस इज द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग द बॉन्ड ड्यूरेशन। बॉन्ड ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका प्रोसीजर है। अब हम इसको ऐड कर देंगे, पहले इसका टोटल निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 123.04, 162, और ये हम करेंगे कैलकुलेटर यूज करके 47.36 इंटू 4, तो 189.44, 189.44, और लास्ट में जो हमारा अमाउंट है वो है 560.52 इंटू 5, ये है 560.52 into 5, so this is 2802.6, 2802.60। ये मैंने वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं, ऑल दिस वैल्यूज आई हैव कैलकुलेटेड। यू कैन सी हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले साल जो है वो उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड ईयर वाले को 2 से, थर्ड ईयर वाले को 3 से, फोर्थ ईयर वाले को 4 से, और जो लेटेस्ट है फिफ्थ ईयर उसको 5 से। यानी कि इसका वेट सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट अमाउंट मिला उसका वेट सबसे ज्यादा है, जो अमाउंट सबसे पहले मिला उसका वेट सबसे कम है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, वी विल जस्ट ऐड दीस टुगेदर, सो दीस आर ऑल इन ऑल 5 फिगर्स। तो फर्स्ट फिगर है 70.16 प्लस 123.04 प्लस 162 प्लस 189.44 प्लस 2802.60, तो टोटल आपका आ गया 3347.24, और बॉन्ड ड्यूरेशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको डी लिखते हैं। बॉन्ड ड्यूरेशन इज सिग्मा वेट इनटू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय द बॉन्ड वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। फॉर्मूला इज ड्यूरेशन इज इक्वल टू सिग्मा वेट इनटू प्रेजेंट वैल्यू, वेट इनटू प्रेजेंट वैल्यू का सिग्मा, ठीक है। सिग्मा यानी कि टोटल फ्रॉम ईयर 1 टू n, 1 से लेके n तक। n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस क्वेश्चन में n 5 है, 5 है, तो ये पांचों का हमने टोटल कर दिया, ठीक है। तो ये बॉन्ड वैल्यू हमने पहले निकाली 793.56, तो ये आपका आ गया 3347.24 डिवाइडेड बाय 793.56, 3347.24 divided by 793.56 divided by 793.56. Okay, so this will give us the value of the bond duration. So let us calculate it. Let's calculate करना है 3347.24 divided by 793.56. So this is 4.218, 4.22 roughly 4.218 or 4.22 years. ये bond duration होगा 4.22 years. Okay, so this concept is important from the viewpoint of the examination as well. So question can be asked regarding the bond duration. So this is 4.218, उसको राउंड ऑफ कर दिया हमने 4.22, 4.218। ये कैसे निकला है, जो आपके वेट्स इनटू प्रेजेंट वैल्यू है उसको, उसका जो सिग्मा किया डिवाइडेड बाय द बॉन्ड वैल्यू। बॉन्ड वैल्यू इज 793 समथिंग, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, ठीक है। दिस इज बॉन्ड ड्यूरेशन। बॉन्ड ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन। Okay, next we have to calculate the modified bond duration. Modified bond duration, that is very simple. Once you have calculated the bond duration, calculating modified bond duration is not that difficult. ये आपकी बहुत इजी हो जाती है अगर आपने एक बार बॉन्ड ड्यूरेशन सही तरह से कैलकुलेट करी। कैलकुलेटिंग द मॉडिफाइड बॉन्ड ड्यूरेशन इज सिंपल। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉडिफाइड बॉन्ड ड्यूरेशन? ओके, मॉडिफाइड बॉन्ड ड्यूरेशन वी राइट इट D star is equal to duration which we have already calculated 1 plus YTM। ये फॉर्मूला आप नोट करेंगे। मॉडिफाइड ड्यूरेशन यानी कि D star का मतलब है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ये D star is equal to ड्यूरेशन डी जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 4.22 डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM। YTM कितना है 14%, 0.14। तो लेट अस कैलकुलेट इट। तो इसका मतलब है ड्यूरेशन 4.22 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14, तो ये आ जाएगा 3.7।
ओके, तो आप देखोगे कि जो बॉन्ड ड्यूरेशन से कम होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, क्योंकि एक से ज्यादा होता है ना डिनोमिनेटर, एक में आप प्लस करेंगे वाईटीएम, कुछ ना कुछ तो वाईटीएम भी होगी, तो ये हमेशा मॉडिफाइड ड्यूरेशन से कम होगा, ड्यूरेशन से कम होगा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन विल बी लेस देन ड्यूरेशन। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेट करना है हमको ड्यूरेशन जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, ड्यूरेशन विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड अर्लियर ऑन, डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाईटीएम, डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाईटीएम। तो वाईटीएम इन दिस केस इज 14%, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज 3.7, 3.7। अब हम इसको इंटरप्रीट कैसे करें? रिजल्ट जो हमने निकाला है, इस रिजल्ट को हम समझे कैसे? हाउ वी कैन इंटरप्रीट दिस रिजल्ट? द रिजल्ट इज, द क्वेश्चन सेज इफ देयर इज 1% इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, इफ देयर इज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ 1% इंक्रीज इन यील्ड ऑन द बॉन्ड प्राइस। ओके, अगर यील्ड हम 1% बढ़ाएंगे तो बॉन्ड की वैल्यू का क्या फर्क पड़ेगा? जैसे अभी 14% यील्ड है क्वेश्चन में यील्ड कितनी दी हुई है? 14%। अगर यील्ड 15% हो जाएगी तो बॉन्ड वैल्यू पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? ओके, अगर हमारी इस क्वेश्चन में यील्ड थी 14%, तो बॉन्ड की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी? 790 समथिंग निकाली थी। तो अगर बॉन्ड यील्ड 15% हो जाती है, 15%, तो बॉन्ड की वैल्यू पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो यील्ड जितनी बढ़ती है बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है, अपोजिट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, ये याद रखना आपको। इफ बॉन्ड यील्ड विल इंक्रीज बाय 1%, इसको ऐसे इंटरप्रीट करेंगे, यील्ड, इफ बॉन्ड यील्ड इंक्रीज बाय 1%, बॉन्ड वैल्यू विल कम डाउन बाय 1%। दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, बोथ हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। अगर बॉन्ड की यील्ड 1% से बढ़ गई तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, कितने परसेंट से कम होगी? जितना हमने मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट किया। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन इसको अगर बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज होती है 1% से, तो बॉन्ड वैल्यू विल डिक्रीज बाय, कम डाउन बाय, सॉरी मैंने 1% लिख दिया, 3.7%, क्योंकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमने 3.7 निकाला है, बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड मॉडिफाइड ड्यूरेशन बाय 3.7। अगर बॉन्ड यील्ड 1% ऊपर जाएगा तो बॉन्ड वैल्यू 3% नीचे, 3.7 नीचे जाएगी। तो इसी तरह से उल्टा है, बॉन्ड यील्ड अगर डिक्रीज होगी तो बॉन्ड वैल्यू राइज हो जाएगी 3.7%। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है, ये मैं बताएगा कि कितने परसेंट से बॉन्ड की वैल्यू कम होगी या बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी अगर हमारी बॉन्ड यील्ड कम होती है या ज्यादा होती है 1% से, 1% से। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड, मॉडिफाइड बॉन्ड ड्यूरेशन, मॉडिफाइड बॉन्ड ड्यूरेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने इतना तो कर लिया। अब एक चीज और रह गई है इस टॉपिक में, वो है कैलकुलेटिंग दी वाईटीएम बाय यूजिंग दी ट्रायल एंड एरर मेथड। तो वही क्वेश्चन हम दोबारा कर रहे हैं, लास्ट चीज रह गई है, हम ट्रायल एंड एरर अगर हम मेथड यूज कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर, तो फिर बॉन्ड की यील्ड कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू कैलकुलेट दी बॉन्ड यील्ड। तो मैं क्वेश्चन वही ले लेता हूँ जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, खाली इसका जो सोल्यूशन है वो दूसरी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं बॉन्ड यील्ड। इसमें हम ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे और इंटरपोलेशन भी यूज करेंगे, इंटरपोलेशन टेक्निक्स वी विल बी यूजिंग, ऑल्दो द स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड नो इट हाउ टू मेक यूज ऑफ द इंटरपोलेशन, बट मैंने क्लास में देखा था कुछ बच्चों को भी इंटरपोलेशन भी करना नहीं आ रहा, तो वो हम इंटरपोलेशन करेंगे। तो इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाली टेबल लेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको चाहिए होगा 15 और 16, क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट द वाईटीएम ऑफ दिस बॉन्ड इज 15.48 बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। अगर आपको ट्रायल एंड एरर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप पहले शॉर्टकट से इसको कर लीजिए, जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या मिलने वाला है, मैं दोबारा से इसके फैक्ट्स लिख देता हूँ। फेस वैल्यू है इस बॉन्ड की 100 और कूपन रेट है 10%, कूपन रेट 10% है, और मेच्योरिटी है 4 इयर्स, और रिडेम्पशन वैल्यू दी हुई है 120, और इसकी मार्केट वैल्यू दी हुई है 94। तो हमको निकालनी है वाईटीएम बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, आई एम राइटिंग इट हियर, मैंने प्रॉब्लम लिख दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई रिपीट, फेस वैल्यू 100, कूपन रेट 10%, कूपन रेट दिया हुआ 10%, मेच्योरिटी 4 इयर्स, रिडेम्पशन वैल्यू 120, एंड द मार्केट प्राइस इज 94 रुपीज आप पे कर रहे हैं इसके लिए। तो व्हाट इज दी वाईटीएम यूजिंग दी ट्रायल एंड एरर मेथड, यूजिंग दी ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर रहे हैं तो इस बॉन्ड का वाईटीएम कितना है? तो आपको ये देखना है कि हमको मिल क्या कर रहा है, हमको मिल रहा है 10 रुपीज ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5, और हमको कैश फ्लो मिल रहे हैं फर्स्ट ईयर में 10, सेकंड में 10, थर्ड में 10, फोर्थ में 10, फिफ्थ में मिल रहा है हमें 100 एंड 130 कैसे 10 रुपीज इंटरेस्ट 120 रिडेम्पशन वैल्यू, ये हमको मिल रहा है। 10 फर्स्ट ईयर में, 10 सेकंड ईयर में, 10 थर्ड ईयर में, 10 फोर्थ ईयर में, और लास्ट ईयर में मिल रहा है हमको 130 कहाँ से आ गया? क्वेश्चन में तो 120 लिखा हुआ है, 10 रुपीज इंटरेस्ट भी मिलेगा, टोटल मिला के हो जाएगा अमाउंट हमारा 130, 10 रुपीज इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब हमको इसकी ये जो सारा अमाउंट है इसकी प्रेजेंट वैल्यू 94 लानी है, 94 को लानी है, क्योंकि 94 इज दी परचेज प्राइस, 94 इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू। तो वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कौन सा डिस्काउंट रेट होगा जिससे ये करने से हमें 94 की वैल्यू मिले? तो देखिए, अगर आपने शॉर्टकट से नहीं किया हुआ तो आपको एक हिंट लेना है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो कूपन रेट से हम स्टार्ट करते हैं तो 10% है, लेकिन दो चीजें हैं, एक तो हमें ये कम प्राइस में मिल रहा है, 100 वाला प्राइस है वो 94 है, तो इसका मतलब है वाईटीएम ज्यादा हो जाएगा, ये याद रखना। 100 वाला प्राइस है बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है 100, हमको कितने में मिल रहा है 94 में, तो इसका मतलब इसका जो वाईटीएम है वो 10% से ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, रिडेम्पशन वैल्यू इसकी 120 है, वो भी पार वैल्यू से ज्यादा है, तो ये दोनों चीजें पॉजिटिव है।
both the things are positive. It means that the actual YTM will be much higher than 10%, which we are getting. So it can be anything, it can be 12, it can be 14, it can be 15. तो हमने ऑलरेडी एक हिंट ले लिया है जब हमने शॉर्टकट से इसको सॉल्व किया है कि 15 पॉइंट से ऊपर है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं 15% है, YTM इसकी 15% है, तो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है. लेट अस चेक इट आउट एट 15%. तो मैं 15% वाले फैक्टर लिख देता हूँ. 15% पीवीएफ टेबल से देखेंगे. 15% 1 2 3 4 5 7. तो 15% की टेबल ये मेरे सामने ही है. 15% पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ रही हैं 0.870, 0.870, 0.756. ये टेबल में से वैल्यू ले रहा हूँ 0.756. थर्ड ईयर की जो वैल्यू है वो है 0.658. फोर्थ ईयर की जो वैल्यू है वो है 0.572, और फिफ्थ ईयर की जो वैल्यू है वो है 0.497. ये वैल्यू दी हुई है. कैसे कैलकुलेट किया आपने वैल्यू? ये हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ टेबल देखी है. we have got this value from the table. टेबल कौन सी लेनी है आपको? टेबल you have to take the present value table, PVF, for year 1, year 2, year 3, year 4 and year 5. Okay, you will just see the value. Why 15%? Because we have an idea that the YTM is between 15 and 16. और दो और इंडिकेटर है वो जो बता रहे हैं कि 10% से ऊपर है. एक तो we are buying it at a price lower than the face value. Second indicator is that we are getting more redemption value than its par value. Redemption value कितनी है? 120. par value कितनी है? 100. तो इससे इसका मतलब हमारी रिटर्न बढ़ जाएगी, YTM बढ़ जाएगी. ठीक है. तो अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं. प्रेजेंट वैल्यू इसकी हो जाएगी CF इंटू PVF. तो 8.70, 7.56, 6.58, 5.72, और ये हम कैलकुलेटर से यूज कर लेते हैं. 130 इंटू 0.497, 130 इंटू 0.497, तो याद आता है 64.61. अब इसका टोटल कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा 8.70 प्लस 7.56 प्लस 6.58 प्लस 5.72 प्लस 64.61, तो ये आ जाएगा 93.17. ठीक है. तो ये बॉन्ड की वैल्यू आई है 93.17. तो अब हमको इसकी वैल्यू हमने कितने में बाय किया? 94. 15% इसकी वैल्यू कितनी है? 93.17. तो इसका मतलब है अगर हमको 94 लानी है प्राइस, तो डिस्काउंट रेट को हमको बढ़ाना पड़ेगा. तो डिस्काउंट रेट विल बी मोर और लेस. 14% पे देखते हैं और 16% पे देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है. 14% पे देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 14%. ये सही किया. 15% पे 0.497, 0.572, 0.658, 0.756 और 0.870. 14% पे इसकी वैल्यू आ रही है ज़्यादा, तो हमको ज़्यादा चाहिए. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 14% इज 0.877, 0.769, 0.675, 0.592 एंड 0.519. और प्रेजेंट वैल्यू इसकी आ जाएगी 8.77, 7.69, 6.75, 5.92 और 130 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.519 से. आई जस्ट टेल यू, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, लेट मी मेक स्लाइड कैलकुलेशन. दैट इज 130 into 0.519. So this is 67.47. 67.47. Aggregate will be 8.8. Yes, aggregate will be 8.77 plus 7.69 plus 6. I have to 8.77 plus 7.69 plus 6.75 plus 5.92 plus 67.47. तो ये वैल्यू आ जाएगी 96.6. ओके, नाउ इट्स ओके. तो हमने क्या किया? पहले हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 15% पे. तो 15% पे इसकी वैल्यू आ रही थी 93.17. फिर हमने इसकी वैल्यू, क्योंकि हमने बाय किया कितने में? 94 में. वी हैव परचेज्ड द बॉन्ड्स फॉर 94. मींस द YTM विल बी लेस. 15% पे इसकी वैल्यू 93.17 आ रही है. तो अगर हम इसको डिस्काउंट रेट को कम करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. अगर डिस्काउंट रेट हमारा कम होता है तो वैल्यू बढ़ती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. लोअर द डिस्काउंट रेट हायर विल बी द वैल्यू. तो 14% पे हमको वैल्यू चाहिए 94, इसलिए हमको ये जो डिस्काउंट रेट है वो कम करना पड़ा. तो डिस्काउंट रेट हमने 14% किया. तो 14% पे इसकी वैल्यू कितनी आई है? 14% पे इसकी वैल्यू आ रही है 96.6. तो अब ये ठीक हो गया. इसका मतलब है जो YTM है हमारा वो 14 और 15 के बीच में. आंसर में ये 15.48 है शॉर्टकट से. शॉर्टकट इज ओनली एन अप्रोक्सीमेशन. शॉर्टकट जो मेथड है वो अप्रोक्सीमेशन है. एक्यूरेट आंसर हमें YTM ही देता है. तो लेट अस चेक इट आउट. व्हाट इज द YTM? इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन. आई विल राइट इट हियर. द फार्मूला वी यूज इज नोन एज इंटरपोलेशन. ठीक है. वी विल यूज अ फार्मूला नोन एज इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन वाला फार्मूला हम यूज करते हैं. पहले हमने वैल्यू कैलकुलेट किया 15 पे, फिर वैल्यू कैलकुलेट किया 14 पे. कम तो किया रेट, क्योंकि 15 पे इसकी वैल्यू आ रही थी 93 पॉइंट समथिंग. तो वैल्यू बढ़ाने के लिए हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा, तो हमने 14 किया. तो इट मींस दी YTM इज बिटवीन 14 एंड 15%. सो लेट्स चेक इट आउट. व्हाट इज द वैल्यू? तो वैल्यू इसका जो इंटरपोलेशन वाला फार्मूला आप लिख सकते हैं. YTM इज
ओके, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ भी फॉर्मूला लिखता हूँ आपको दिखाता हूँ. लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, इनटू हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए. फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया. YTM इज इक्वल टू लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. YTM इज इक्वल टू लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस मार्केट वैल्यू. ऊपर लिखना है प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट. 14 और 15 में से लोअर कौन सा है? 14. ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट इनटू प्रेजेंट वैल्यू इनटू लोअर रेट माइनस सॉरी हायर रेट माइनस लोअर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट. ओके, यू जस्ट नोट डाउन. सो नाउ वी विल पुट ऑल दिस इन द फॉर्मूला. तो लोअर रेट क्या है? 14 और 15 में से लोअर क्या है? 40 प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर इज 96.6. मार्केट वैल्यू कितने में बाय किया था? 94 डिवाइडेड बाय 96.6 माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर 93.17 और इधर हायर यानी कि 15 लोअर 40. ओके, यू कैन नोट इट डाउन. In the book, other symbols are used for this formula, but I will prefer if you will use this one because this is self-explanatory. So lower rate of interest, LRI, everything is clear, very clear. Present value at lower rate माइनस मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू जिस प्राइस पे आपने बॉन्ड खरीदा है, बॉन्ड कितने में खरीदा है? 94. और नीचे डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है? प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर. ऑलरेडी कैलकुलेट किया आपने प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर. ठीक है, ओके. तो सॉल्विंग दिस 14 प्लस 96.6 हो जाएगा 2.6 ऊपर 2.6 आ जाएगा. 14 प्लस 2.6 डिवाइडेड बाय 2.6 और 83 3.43 15 माइनस 14 तो ये तो 1 हो जाएगा. तो 14 प्लस ओके, दिस विल गिव अस मोर एक्यूरेट आंसर ऑफ YTM. इन द बुक वी हैव सॉल्व्ड इट अर्लियर ऑन विद द शॉर्टकट मेथड. तो शॉर्टकट में थोड़ी एक्यूरेसी कम होती है. ट्रायल एंड एरर में आपको परफेक्ट आंसर मिलता है. यू गेट द परफेक्ट आंसर विद द ट्रायल एंड एरर. तो चेकिंग इट आउट इट विल बी 2.6 डिवाइडेड बाय 3.43 तो ये आ रहा है 0.7576 अप्रोक्सीमेटली. तो ये आपका आ जाएगा 14.76. तो आपका YTM आ जाएगा 14.76 इज द YTM. बट बुक आंसर इज शोइंग 15.48. YTM इज मोर एक्यूरेट यूजिंग द ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर एक, हाँ, ट्रायल एंड एरर में ज़्यादा आपका एक्यूरेसी आती है. यू गेट द मोर एक्यूरेट आंसर यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड. ठीक है, so this is 14.76. Yes, using the shortcut method we have obtained the answer as 15.48. 15.48. काफी डिफरेंस आ गया. इतना डिफरेंस नॉर्मली we don't get so much difference using these formulas. Some छोटा सा डिफरेंस तो आ जाता है, but इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता. होता है there may be a calculation error. You can check it out. Calculation error can be there in the shortcut as well, so you can check that. So but the procedure will be same as I have explained to you. In the trial and error you have to start with the interest rate, so you must get some hint. Hint आपको कैसे मिलेगा? Where you will get the hint? You will get the hint from the par value. Look at the par value. Look at the maturity value. Redemption value. अगर redemption value ज़्यादा है, redemption value can be more or it can be equal, but it cannot be less. And secondly, look at the purchase price. If you have purchased the debenture at a price which is less than the market value, ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू से लेस परचेज किया आपने तो YTM इंक्रीज हो जाएगा. अगर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा खरीदा है, अगर आपने फेस जो मार्केट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा है, इन दैट केस योर YTM विल बी लेस. जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट. ठीक है, हायर दी मार्केट प्राइस लोअर विल बी YTM एंड वाइस वर्सा. और इसी तरह हायर दी रिडेम्पशन वैल्यू हायर विल बी दी YTM. उस केस में दोनों का पॉजिटिव रिलेशन. अगर रिडेम्पशन वैल्यू पार पे हो रही है तो YTM कम हो जाएगी, यहाँ नॉर्मल रहेगी. ठीक है, so this is how you will calculate it with the help of trial and error. So these types of questions can be asked in the examination. So we have discussed the bond yield using shortcut. We have discussed bond yield using the trial and error. We have also discussed the calculation of the bond value, and we have also discussed how to how to calculate the bond duration, and also modified bond duration, and the significance of the modified bond duration. What is the message which is conveyed by the modified duration? Okay? And how to interpret the results. How to interpret the results. Yes. Okay. Now we'll discuss question number 11. I will write down here some of the brief information about the question. The bond of the face value 1000 is available at market price of 780. So face value of the bond is 1000 and market value is much less. It is available at 780. 780. It has a coupon rate of 6%. Coupon rate 6% or interest rate. Maturity time 8 years. 8 years. If the bond is redeemable at par, compute redemption value is at par. Means at par means face value 1000. We have to calculate the yield to maturity of the bond. Yield to maturity YTM. Okay. We have to calculate yield YTM. तो आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए. इसमें कूपन रेट है 6%. और ये क्वेश्चन भी बीकॉम ऑनर्स में एक बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी. इट हैज बीन आस्क्ड इन बीकॉम ऑनर्स वन ऑफ द अर्लियर एग्जाम्स. ओके.
तो 1000 रुपये वाला बॉन्ड हमें 780 का मिल रहा है. 1000 bond worth 1000 we are getting it only at 780. So it means we are getting it at a lower price. When we are getting the bond at a lower price, it will increase our yield. Yield हमारी बढ़ जाएगी. दूसरी बात, second thing, the bond is to be redeemed at par, redeemable at par. तो redemption में तो हमें कोई advantage नहीं है, लेकिन purchase में हमें advantage है 220. तो जो इसका coupon rate 6% बता रहा है, इससे बहुत ज़्यादा हमारी yield होने वाली है. Yield will be much higher than 6%. So let's check it out by shortcut method, and then we'll solve the same question using the trial and error method. So using the shortcut method, YTM is equal to interest. Interest कितना है bond का? Yes. Question. I'm written the facts. Yes. The interest rate is 6%. So interest we will be getting is 60. So YTM using shortcut interest plus redemption value minus market value divided by n upon redemption value plus market value divided by 2. Interest is 60, redemption value 1000 or market value 780. Number of years 8 because its maturity time is 8 years. So this is 1000 plus 780 divided by 2. This is how we are going to solve it. Okay. This is all the information we have read in the formula. Interest will be 60. ठीक है. Maturity value 1000. Maturity value is 1000 or redeemable value 1000. Market value 780. Number of years 8. Okay. So calculating this is equal to 60 plus 220 divided by 8. 220 divided by 8. So this will be let me check it out. 220 divided by 8, we get 220 divided by 8, we get 27.5 plus 27.5, and in the denominator we get 1800, means 89. So this is 87.5 divided by 89 into 100. Okay. 87.9 is 87.5. Sorry. 87.5 divided by 890 into 100. 9.83. 9.83. So if we're using the shortcut method, it is giving us the answer of 9.83. 9.83. It is giving us the answer of 9.83%. But this is not the correct answer. 9.83. It is only an approximation. Okay. It is only an approximation. So what will be the correct answer? Correct answer we will be getting only by using trial and error. Trial and error. So trial and error हम use करते हैं. Let us check it out by trial and error. So trial and error will start with 10%. Present value factor at 10%. And the cash flow we will be getting is 60 in the first year, 60, 60, 60, 10, 60. And PDF at the rate of 10%. So we'll find the values from the table at the 10%. Okay. Present value at 10%. Present value factor at 10%. The respective values are 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. This is the cash flow we are getting. First year 60, second year 60, third year 60, fourth year 60. Last year we are getting 60 plus 1000 redemption value 1060. अब हमने 10% के साथ इसका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो दिया है टेबल में से. ठीक है. 10% present value factor from the table. And the respective values are 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 and 0.621. ठीक है. 0.621. You can note it down. And multiplying it 60 with 0.909. Okay. 60 into 0.909. We get 54 P's and 54 paisa. 54.54. Second is 60 into 0.826. 0.826 into 60. So 49.56. Third year 60 into 0.751 is 45.06. Fourth year 60 into 0.683, 40.98. And last is 1060 into 0.621. Value is 658. 658.26. Okay. So total comes out to be 54.54 plus 49.56 plus 45.06 plus 40.98 plus 658.26. So total value is 848.40. Okay. This is the value. Okay. So we have purchased it for 780. हमने कितने में बाय किया? 780 में. और at 10% the value is 848.40. तो इस वैल्यू को हमने कम करना है. हमने कहाँ पे लेके जाना है? 780 पे. इसके लिए हमें डिस्काउंट रेट बढ़ाना पड़ेगा. We have to increase the discount rate. So let us make the discount rate 12%.
ओके, आप 11 भी कर सकते हैं, हम इसको 12 कर लेते हैं। एट 12%, लेट्स चेक इट आउट, व्हाट आर द रिस्पेक्टिव वैल्यू। अगर आपको, क्योंकि हमने 780 में बाय किया है और 10% पे ये हमें वैल्यू दिखा रहा है 848.8, तो इसको हमको 780 के पास लेके जाना है, वी हैव टू ब्रिंग इट टू 780। तो व्हाट वी विल डू फॉर दैट, वी विल इंक्रीज द डिस्काउंट रेट। यू कैन डू इट बाय 1%, यू कैन डू इट बाय 2%, बोथ वेज इट विल बी ओके। तो अगर हम 2% से इंक्रीज करते हैं या 1% से भी कर सकते हैं, तो 2% से किया 12%, तो 12% वाले हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स देखने हैं, वो है 0.893, 0.893, 797, 0.797, ये हमने प्रेजेंट वैल्यू टेबल से देखा वैल्यू, 0.712, 0.712, उसके बाद है 0.636, 0.636, और लास्ट में वैल्यू आ रही है 0.567, 0.567। ये वैल्यू मैंने नोट कर लिया टेबल, प्रेजेंट वैल्यू टेबल। दिस वैल्यू आई हैव नोटेड इट डाउन फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू टेबल। 12%, क्यों 12% क्यों लिया मैंने? मैं नो नहीं ले सकता था, नो लेने से मेरी वैल्यू और बढ़ जाती है। अगर मैं जितना डिस्काउंट रेट कम लेता हूं तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। मुझे कहां तक पहुंचना है? मुझे पहुंचना है 780। आई हैव टू रीच एट 780। इन ऑर्डर टू रीच एट लोअर प्राइस वी हैव टू इंक्रीज द डिस्काउंट रेट। दैट्स व्हाई डिस्काउंट रेट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 टू 12। अब 12 पे देखते हैं कितनी आ रही है वैल्यू। लेट अस चेक इट आउट एट 12%। तो 12% पे वैल्यू चेक करेंगे, 60 into 0.893, तो ये आ गया 53.58, 53.58। सेकंड वैल्यू आ रही है मेरी 60 into 0.797, तो ये आ रही है 47.82, 47.82। नेक्स्ट आ रही है यस 60 into 0.712, 712, तो ये आ रही है 42.72, 42.72। नेक्स्ट इज 60 into 0.66, 60 into 0.636, 38.16, 38.16, और लास्ट में 1060, 1060 into 0.567, into 0.567, तो ये आ रही है 601.02, 601.02। टोटल वैल्यू, लेट्स चेक इट आउट। टोटल वैल्यू इज 53.58 प्लस 47.82 प्लस 42.72 प्लस 38.16 प्लस 601.02, तो ये आपकी आ गई 783.3, 783.3। ओके, 783.3 at 12%। ये सारी कैलकुलेशंस 60 into 0.893, 53.8। सेकंड इज 60 into 0.797, 47.82। नेक्स्ट है आपकी 60 into 0.712, 42.72। नेक्स्ट है आपकी 60 into 0.636, 38.16, एंड लास्ट है 1060 into 0.567, 601। तो टोटल आपका आ गया, टोटल आ गया 783.82। तो इट्स वेरी क्लोज टू 780, इट मींस इट इज इवन हायर देन 12। बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो रॉन्ग लग रहा है मुझको। बुक में इट इज आंसर इज गिवन 10.15, एक्चुअल आंसर विल बी 12 पॉइंट समथिंग, 12 से भी ज्यादा होगा। आंसर विल बी मोर देन 12, मोर देन 12%। 780, okay, actually वो we have done it for 5 years, it has to be done for 8 years, one mistake I have made, it has to be done for 8 years। maturity value ये आप तब नोट कर लीजिए 5 साल अगर होती है maturity value, sorry, in this question the maturity value is given as 8 years, actually the maturity value I have calculated is for 5 years, so these calculations are good for 5 years question, not for 8। 8 के लिए आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस जो मैंने अभी किए हैं ये 5 साल के लिए किए हैं, सॉरी, द क्वेश्चन सेज मेच्योरिटी टाइम इज 8 years। अगर आप 8 years लेंगे तो वो शायद 10.15 पे नहीं दिखाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको 3 वैल्यू और लेनी है इसके अलावा। अभी हमने 5 वैल्यू दी है, 3 और लेंगे, ईयर 6, ईयर 7 एंड ईयर 8। ओके, तो टेबल अभी ये जो 106 ये नहीं होगा, ये 60 होगा। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 60 60 1060। अभी ये कैलकुलेशन नहीं करनी हमको, 10% पे इसको और फर्दर एक्सटेंड करना है। 10% पे जो वैल्यू हमने ऑलरेडी ली है ये 5 इयर्स के हिसाब से ले ली मैंने, ये 10 इयर्स के हिसाब से, 8 इयर्स के हिसाब से ले ली। प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, हाँ 0.564 और 0.513, और हाँ वैल्यू हमको लेनी है 0.467। add 3 more values because 8 years is the maturity time, 8 years is the maturity time, for 8 years you will calculate and then find out the value at 10%। 10% पे क्या वैल्यू आ रही है? अगर ज्यादा आ रही है तो आपको डिस्काउंट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये 780 से ज्यादा आती है तो आपको डिस्काउंट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर 5 ईयर का होता तो ये इसकी बाइकी 12 पॉइंट समथिंग, लेकिन अगर 8 है तो ये 10 पॉइंट कुछ आएगा, आपको फर्दर एक्सटेंड करना है इसको, यू हैव टू एक्सटेंड इट फर्दर। ओके, लेट मी चेक आउट इफ वी हैव द टाइम, वी कैन डू, यस वी हैव द टाइम, वी कैन कैलकुलेट इट राइट नाउ। तो नेक्स्ट 10% पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, 10% पे 60 into 0.564, तो आ जाएगा 33 ये भी दोबारा करना पड़ेगा, 33.84। नेक्स्ट इज 60 into 0.153, 60 into 0.513, 60 into 0.513,
30.78, 30.78, and last is 1060. Okay, yes, 1060 into 0.467. So this is 495.02. 495.02 or 60 into 60 into 0.621. 37.26. This is 37.26. Okay, now it is correct. Because we have to make the calculations till 8 years. 8 साल तक हमको कैलकुलेशन करनी है. अब आप इसका टोटल कर लेंगे. अगर ये टोटल, if this total is more than 780, so you will have to increase the discount rate. Let us check out the total. Total is 54.54 plus 49.56 plus 45.06 plus 40.98 plus 33.84 plus 30.78 plus 495.02. So this is 749.78. 749.78. 749.78. 749.78. Okay. तो ये हमारा लेस आ रहा है. It is less than the purchase price of 780. Less than the purchase price of 780. So it means instead of increasing the discount rate, we will reduce the discount rate and we will calculate it at 9%. The main thing is by trial and error. Yes, you have to calculate the present value at a given rate. आपको present value एक given rate पे calculate करनी है. अगर आपकी value ज़्यादा आ रही है जो आपका purchase price है तो discount rate आप ऊपर लेके जाएंगे और अगर कम आ रही है तो discount rate नीचे लेके जाएंगे. फिर दोनों value calculate करेंगे and after that you have to do the interpolation. Interpolation मैंने आपको formula बताया हुआ है. Interpolation का formula आप यही use करेंगे जो मैंने आपको एक previous question में लिखवाया ये वाला. ठीक है. So interpolation you must know how to do the interpolation. Main thing is how to use the interpolation. Lower rate of interest plus present value at lower rate minus market value divided by present value at lower rate minus present value at higher rate. ठीक है. Into उसके बाद ब्रैकेट्स में और ब्रैकेट क्लोज के बाद present value lower higher rate of interest minus lower rate of interest minus lower. This is how you will do the interpolation. So interpolation is required in case you are using the trial and error method. So trial and error method में the procedure is somewhat long, but it will give you the accurate answer. It will give you the correct answer. But in case of shortcut method, it is easy to calculate, but it may not give you the correct answer. So this is all regarding the equity, all regarding fixed income securities. Next, in the next class, we have to discuss the equity analysis or valuation of the equity shares. So valuation of the equity shares can be done with different techniques, different methods. तो इसमें फर्स्ट जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस है, एक टेक्निक होती है फंडामेंटल एनालिसिस. फंडामेंटल्स में क्या होता है हम डिस्कस करते हैं तीन फंडामेंटल्स, तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स हम मालूम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम शेयर का प्राइस डिटरमिन होता है. तो इसमें तीन फंडामेंटल एनालिसिस कौन कौन से होते हैं? इकोनॉमिक, ब्रॉड इकोनॉमिक हम स्टडी करते हैं, फिर हम इंडस्ट्री स्टडी करते हैं और तीसरा होता है कंपनी. थ्री मेन फंडामेंटल्स हुई स्टडी. इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है. जैसे कोरोना काल में इंडियन इकोनॉमी डिक्लाइन बाय 8-9%. कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यानी कि शॉर्ट पहले अगर 100 था साइज तो घट के 84 के करीब आ गया एकदम अचानक. तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था. एक होता है एक्सपेंशन जब इकोनॉमी का साइज बढ़ता है और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन जब इकोनॉमी का साइज कम होता है. ड्यूरिंग यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन पीरियड जो इकोनॉमी का साइज छोटा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, पीपल विल हैव लोअर इनकम एंड एज ए रिजल्ट इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल. तो आपका ओवरऑल कोई भी कंपनी अच्छा करेगी ऐसे कम होगा. तो आप इकोनॉमी को स्टडी करेंगे. इकोनॉमी आप क्या क्या स्टडी करते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एट व्हाट रेट जीडीपी इज ग्रोइंग. ठीक है, एट व्हाट रेट जीडीपी इज ग्रोइंग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस रेट से इंक्रीज हो रही है. डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कहते हैं, हाउ मेनी पीपल आर यंग, हाउ मेनी पीपल आर ओल्ड, यू स्टडी फैक्टर्स लाइक दैट. देन आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहता है. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आ जाता है लाइक द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर. जब ये फैक्टर्स आप स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस, ब्रॉड इकोनॉमिक एनालिसिस करें, सो दैट वी कैन डिटरमिन in which direction the company will go and what is the future of the company, whether to buy the shares of that company or not. ठीक है, तो इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे. उसके बाद सेकंड आपका आता है इंडस्ट्री. कौन सी इंडस्ट्री में आप शेयर परचेज करना चाहते हैं? क्या आप सॉफ्टवेयर में परचेज करना चाहते हैं या आप मेटल्स में परचेज करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में परचेज करना चाहते हैं? विच इंडस्ट्री शेयर यू वांट टू बाय, उस इंडस्ट्री की आप एनालिसिस करें. ठीक है, you will collect the data about that industry. For example, whether computer industry is growing or not. So from last so many years in India, the computer industry or the software industry is doing very well. It is growing at a compound annual growth rate of around 30-40% per year. So it is a very good growth, and in the coming year the growth will slow down because when the base is small, growth rate is high. जब बेस बड़ा हो जाता है तो फिर ग्रोथ रेट को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है. तो दैट इट विल नॉट ग्रो एट दैट रेट. तो आप स्टडी करेंगे इंडस्ट्री. आप ड्रग इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. फार्मास्यूटिकल, ड्रग मींस फार्मास्यूटिकल, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. और यू मे इन्वेस्ट इन मेटल, यू मे इन्वेस्ट इन ऑयल. तो किस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस इंडस्ट्री की स्टडी करना, क्यों स्टडी उस इंडस्ट्री का आगे क्या होने जा रहा है. देन थर्ड फैक्टर इज कंपनी एनालिसिस. तो आप कंपनी को एनालाइज करेंगे. हु आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है. हु आर द प्रमोटर्स ऑफ दिस कंपनी, हु आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द कंपनी. ठीक है, कंपनी के आप फाइनेंशियल स्टडी करेंगे. लास्ट 5 साल से कंपनी का प्रॉफिट कितना आ रहा है. ठीक है, कंपनी की अर्निंग पर शेयर क्या है, ईपीएस क्या है, कंपनी डेट इक्विटी रेशियो क्या है. व्हेन यू स्टडी द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, इट इज नोन एज कंपनी एनालिसिस. तीनों को मिला के हम बोलते हैं ईआईसी एनालिसिस. ईआईसी एनालिसिस. ई मींस इकोनॉमी, आई मींस इंडस्ट्री और सी मींस कंपनी इन विच यू वांट टू इन्वेस्ट. तीनों चीज. तो सबसे ब्रॉड क्या होता है? इकोनॉमी. सबसे बड़ी क्या होती है? इकोनॉमी होती है. उसके बाद सेकंड नंबर पे साइज का आता है इंडस्ट्री का. इंडस्ट्री के बाद सबसे छोटी होती है कंपनी. तो आप इसी ऑर्डर में इसकी स्टडी करेंगे और फिर आप डिसाइड करेंगे कि वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन ए कंपनी और नॉट.
तो इसको, इस स्टडी को हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस। तो एक वन पार्ट हो गया। सेकंड तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आप यू मेक वेरियस चार्ट्स फ्रॉम दी, और एक आप ट्रेंड एस्टैब्लिश करना चाहते की कोशिश करते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है और आगे किस डायरेक्शन में जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में आप बहुत सारे हम चार्ट्स बनाते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने आपको हिंट दे दिया इन्फॉर्मेशन। EIC एनालिसिस में आप इकोनॉमी स्टडी करेंगे, इकोनॉमी के पैरामीटर कैसे हैं, GDP किस रेट से ग्रो कर रही है, गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स क्या है, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या है, टैक्स रेट क्या है, और पूरी कंट्री में जो हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, यंग कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से इकोनॉमी आगे ग्रो करेगी। अगर इफ देयर आर टू मेनी ओल्ड पीपल इन ए कंट्री व्हाट विल हैपन, इकोनॉमी का साइज ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जैसे जापान में स्टैग्नेशन है बिकॉज टू मेनी ओल्ड पीपल आते हैं। तो जो इनोवेशन करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, दे आर यंग, कंज्यूमर्स भी ज़्यादातर यंग होते हैं और इनकम कमाने वाले भी यंग हैं। ठीक है, तो इफ इन एन इकोनॉमी टू मेनी ओल्ड पीपल आर देयर, द इकोनॉमी विल नॉट ग्रो बाय दैट। तो पहले आप इकोनॉमी की स्टडी करेंगे, उसके बाद आप इंडस्ट्री की स्टडी करेंगे। इंडस्ट्री में आप देखेंगे इंडस्ट्री का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, किस डायरेक्शन में इंडस्ट्री जा रही है और आगे स्कोप क्या है इंडस्ट्री का। ठीक है, फिर इंडस्ट्री की स्टडी करने के बाद पर्टिकुलर कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दैट इज नोन एज EIC एनालिसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड इज टेक्निकल। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके थोड़े बहुत चार्ट्स बनाएंगे और फिर फाइनली हम मूव ऑन करेंगे उसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है बाय डिफरेंट मेथड्स। बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस वैल्यूएशन ऑफ द इक्वेशंस। So that's all for today's class. If you have any queries, questions, now you can ask in the question answer session. Now the question answer session is open for all the students, and if you have any queries, any problems, or any issue relating to today's class, you can discuss them. Sir, in the last class you were going to discuss the question through trial and error के कर लिया मैंने बच्चे। नारायण जी, we have discussed many questions through trial and error. शायद मैंने वो वाला क्वेश्चन नहीं किया, but we have discussed other questions. I hope it is clear. If it is not clear yet, you can ask me in the group, WhatsApp group. कोई specific question है तो आप भेज दीजिए, मैं उसका solution भी बना के भेजूंगा। If there is any specific question you want, I can prepare the solution and can send you. तो ट्रायल एंड एरर के हमने बहुत सारे, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए इंटरपोलेशन वाला और कैसे प्रोसीड करते हैं उसको। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम विच बुक? इज इट फ्रॉम रेसिपी और फ्रॉम दिस बुक? वनिता त्रिपाठी। आप ये व्हाट्सएप ग्रुप में है तो आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन भेज दीजिए। ठीक है, यू जस्ट सेंड मी द क्वेश्चन और इन द ग्रुप वी कैन डिस्कस। कौन सा क्वेश्चन यू वांट टू डिस्कस, वी विल डिस्कस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, आपने अगर रेगुलर सारी क्लासेस अटेंड की हैं जो हमने फिजिकल फॉर्म में भी की हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ कैप्सूल है जो आज हम ऑनलाइन कर रहे हैं। मेन इज इन द फिजिकल वाली जो क्लासेस हुई है, और ये आपको समझ लीजिए हेल्प मिलेगी थोड़ी बहुत। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो बच्चों से ले लीजिए। खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस हो पा रही हैं क्लास में। जो भी हम क्लास में कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 75 क्लासेस का जो टोटल सिलेबस है वो हम कवर करने जा रहे हैं 15-16-20 क्लासेस। तो फिर ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ कवर करेंगे, खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करें। 4 इयर्स, अच्छा वो 4 इयर्स है, वो तभी हमने 5 इयर्स का कर लिया। तो आप 4 साल से इसको कैलकुलेशन करोगे तो सही आ जाएगा आंसर। ठीक है, मुझे लगा था 5 इयर्स का है तो उसमें शायद मिस्टेक होगी। यू जस्ट मेक, हाँ उसमें मेच्योरिटी टाइम की प्रॉब्लम आ गई। आप मेच्योरिटी टाइम 4 इयर्स करोगे तो एकदम एक्यूरेट आंसर है। मनिंदर जी, आई थिंक योर प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। प्रिया रानी, this is confidential, nobody knows who prepares the questions. This is 100% confidential, nobody knows who prepares the questions. हाँ बच्चे, मैंने मिस्टेक कर दिया, एक और स्टूडेंट ने बोला था क्वेश्चन नंबर 6 में मेच्योरिटी 4 है तो 4 तक ही लेना है हमको। मैंने समझा 5 तक है, 4 तक ही लेना है उसको। आप 4 तक ही लेके कैलकुलेशन कीजिए उसकी। अगर मेच्योरिटी 4 है तो 4 तक ही लेंगे। मनिंदर सेम क्वेश्चन, हाँ वो 8 साल तक लेना मनिंदर, उसमें 8 लेना है। वो मेरे दिमाग में 5 बैठा हुआ, मैं 5 ही ले रहा हूँ। आपको मेच्योरिटी टाइम के हिसाब से लेना है। अगर मेच्योरिटी टाइम 8 है तो 8 लेंगे, 4 है तो 4 लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, वी हैव टू टेक 8, यू आर राइट, वी हैव टू टेक 8 आफ्टरवर्ड्स इन द लास्ट सेशन। आई हैव टेकन 8। आप 8 ही लीजिए क्योंकि मेच्योरिटी टाइम 8 है, 4 नहीं लेना, 8 ही लेना। ठीक है, ओके। एनोनिमस, अरे 4 इयर्स पे ही निकालना है, मैं बोल तो रहा है बच्चे, जितना मेच्योरिटी टाइम है उतना ही लेना है। 4 है तो 4 लेंगे, 8 है तो 8 लेंगे। मैंने 5 वैसे ही ले लिया है गलती से, आप उसको 4 करो। हो सकता है बच्चे चेक कर लो, मैंने भी चेक नहीं किया, मैं चेक करके बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास। हाँ मैंने गलती से 5 ले लिया बच्चे, सॉरी। ये सभी बच्चे सेम पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपने क्लास अच्छी तरह से अटेंड किया। इट्स गुड। अगर इफ आई मेक ए मिस्टेक यू आर करेक्टिंग मी। ये 5 ही 4 ही लेना है। दिस इज टू बी टेकन एज 4 नॉट 5। रियल इट हैज टू बी टेकन एज 4। 5वें साल की मुझे लगा 8 है, और दूसरे क्वेश्चन में 8 लेना, 5 नहीं लेना। ठीक है, करेक्ट है, 8 ही लेना क्योंकि 8 साल उसकी मेच्योरिटी है ना। नो क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसकी मेच्योरिटी टाइम 8 साल है। 8 ही लेना क्योंकि उसकी मेच्योरिटी टाइम 8 है। जितनी मेच्योरिटी टाइम होगा उतने 8 ईयर्स लेंगे, ना कम ना ज्यादा, नाइदर मोर नॉर लेस। 5वें साल नहीं लेना, ये प्रिया रानी 5वें साल नहीं लेना, 4 तक लेना। हाँ, डाउ थ्योरी तो आपका शेयर वैल्यू में आएगा, मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। नेक्स्ट जब हम शेयर डिस्कस करेंगे तो डाउ थ्योरी आएगी, उसके अंदर। यस सर, क्लियर। नारायण सिंह राठौर का क्वेश्चन क्लियर है, ओके थैंक यू। जितने साल में छोटी क्या उतने ही लेने हैं, ना उससे कम ना ज्यादा। अगर मैंने 5 ले लिया तो गलती से ले लिया, मुझे लगा 5 है, 4 ही लेना। हाँ, बुक वनिता त्रिपाठी 4 ही लेने, उसको 4 साल लेके करिए आप, ठीक हो जाएगा। क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग होती है बच्चे, वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कंपनी को क्रेडिट करती हैं, जैसे कि A+, B+ या C। A+ का मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है और कंपनी विल बी एबल टू पे इट्स डेट। समवन हैज आस्क्ड फॉर इट्स क्रेडिट रेटिंग।
जैसे आपकी क्रेडिट रेटिंग होती है, अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो आपका सिविल स्कोर पूछा जाता है। सिविल स्कोर, अगर आपने कभी पहले लोन लिया और अपने टाइम पे उसकी पेमेंट कर दिया तो योर सिविल रेटिंग विल बी हाई। सो इट मींस अगर आपको बैंक से दोबारा लोन लेना है तो बैंक विल प्रेफर यू बिकॉज यू आर ए गुड कस्टमर, यू आर एबल टू पे योर डेट इन टाइम, सो योर क्रेडिट रेटिंग विल बी हाई। बट इफ कस्टमर हैज डिफॉल्टेड इन एनी ऑफ द प्रीवियस लोन्स, पहले कभी अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया लोन में तो आपकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी, फिर आपको क्रेडिट रेटिंग कम होने से क्या होगा, आपको लोन नहीं मिलेगा आसानी से, किसी नए बैंक से कोई बैंक आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से कंपनी की क्रेडिट रेटिंग होती है ABC, ए प्लस या बी प्लस। अगर ए प्लस है तो बहुत अच्छा है, कंपनी 100% श्योर है, या काफी उम्मीद है कंपनी अपना इंटरेस्ट भी देगी, प्रिंसिपल भी देगी। और अगर बी है तो मतलब ठीक है, मॉडरेट है। अगर सी है तो कंपनी बेकार है, इसमें इन्वेस्ट मत करो। इस तरह से क्रेडिट रेटिंग होती है। तो दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया में है, इकरा और क्राइसिल। ये कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग देती हैं कि ये कंपनी अपना लोन समय पे भुगतान करेगी या नहीं करेगी। उसके बाद आप डिसीजन लेंगे कि इसको लोन देना है कि नहीं। ठीक है, इसको क्रेडिट रेटिंग होता है। हाँ 4 ही लेने हैं मनिंदर, 4 ही लेने हैं, 5 नहीं लेने, वो मैंने गलती से ले लिया। 4 ही लेने हैं, फिर बार-बार सारे बच्चे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मनीषा, आई हैव एक्सप्लेन, इफ देयर आर 4 इयर्स यू विल टेक ओनली 4 नॉट 5। पांचवा नहीं लेना, 4 से एकदम करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा गलती से लिया था, वो उसको नहीं लेना। और अगर मेच्योरिटी टाइम 8 है तो 8 लेंगे, 4 है तो 4 लेंगे, 5 है तो 5 लेंगे। ठीक है, ऑल क्वेरी सॉल्व। ओके, थैंक यू प्रिया। एनी अदर स्टूडेंट वांट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन? यू जिसमें 4 साल मेच्योरिटी है उसमें 4 लीजिए, 8 वाले में 8 लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दीजिए। वो शायद मैंने क्वेश्चन को ओवरलुक कर दिया और 4 की जगह मैंने 5 ले लिया, तो आप उसको 4 ही लेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा। मेथड वही आपको यूज करना है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरपोलेशन वाला आप फार्मूला अच्छी तरह से उसको यूज। ओके, थैंक यू।